हेलो एवरीवन। आज हम लोग सी प्लस प्लस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं। एक्सेस प्रिविलेज इन सी प्लस प्लस हम लोग पढ़ चुके हैं। सी प्लस प्लस में 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। So, private, public and protected specifier that helps in encapsulation of data at various levels. प्राइवेट डेटा मेंबर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग आउटसाइड नहीं एक्सेस कर सकते हैं। So, if data are declared as private in a class, then it is accessible by the member function of that class where they are declared. The private member function can be accessed only the members of that class. By default, any members of the class is considered as private by C++ compiler if no specifier declared for the members. मतलब कि प्राइवेट मेंबर्स को हम सिर्फ मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं और किसी डेटा को नहीं डिफाइन किया हुआ है डेटा मेंबर्स को, तो बाय डिफॉल्ट इट इज प्राइवेट। पब्लिक the member function that public access specifier can be accessed outside the class. So public आप देखते होंगे किसी भी चीज को पब्लिकली डिफाइन किया जाता है तो that is accessible for everyone. सेम पब्लिक मेंबर फंक्शन को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ मेंबर इज एक्सेस्ड बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास। Now protected members are accessible, same private की तरह ही है। Protected member functions are accessible by class itself and the class is the member that with protected specifier act exactly like the private as long as they are referenced with the class or from the instance of the class. The specifier is especially used when you need to use inheritance facility of C++. हम बता चुके हैं कि हम लोग protected data members use करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे inheritance, concept of inheritance. The protected members become private of a child class in the case of private inheritance, public in the case of public inheritance, and stay protected in the case of protected inheritance. ये देखिए, ये आपका एक विजिबिलिटी मोड है। पब्लिक को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओन मेंबर में पब्लिक एक्सेस होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस होता है, प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं क्लास मेंबर्स के थ्रू, लेकिन अदर के क्लास के थ्रू नहीं एक्सेस कर सकते हैं। सेम प्रोटेक्टेड में भी सेम है जो कि प्राइवेट का है। नाउ द क्वेश्चन इज when we want our private data to be shared by non-member function, जब हम non-member function के थ्रू किसी private data को शेयर करना चाहते हैं तो क्या होगा। Basically we declared someone as a friend. You give it access to the private member. Single function or entire class may be declared as friend of a class. अगर हम प्राइवेट डेटा को किसी नॉन मेंबर फंक्शन के साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए C++ में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसे हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। So friend function is non-member function of the class that has been granted access to all private members of that class. सभी private members को हम एक non-member function के थ्रू access कर सकते हैं, that is friend function. We simply declare the function within the class by fixing its declaration with keyword friend. कीवर्ड फ्रेंड को यूज करेंगे, आगे लिखेंगे तो ये हमारा फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर होगा। फंक्शन डेफिनेशन मस्ट नॉट यूज द
कीवर्ड फ्रेंड। जहां पर आप डिक्लेयर करेंगे वहां पर फ्रेंड लिखेंगे, बट जहां पर आप फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे वहां पर आप कीवर्ड फ्रेंड नहीं यूज करेंगे। Definition of friend function is specified outside the class body and it is not treated as a part of the class. The major difference between member function and the friend function is that member function is accessed through the object while friend function is required object to be passed as a parameter. जब हम लोग इसका सिंटेक्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम फ्रेंड फंक्शन जो अब हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वहां ऑब्जेक्ट का हम पास करते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को हम पास करते हैं। देखिए ये रहा सिंटेक्स, क्लास नेम है एबीसी, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ प्राइवेट डेटा मेंबर्स होंगे और पब्लिक के अंदर हम ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिफाइन किए हैं, friend void xyz is the name of function, object space of class। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है, जिसके थ्रू आप इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Now we will see some characteristics of friend function. It is not in scope of class. It cannot be called using object of that class. It can be invoked like a normal function. It should use a dot operator for accessing member. It can be public or private. It has object as argument. And perhaps the common use of friend function is overloading and for IO. एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है क्लास। क्लास का नाम हमने दिया है डेमो, जिसमें एक प्राइवेट मेंबर है एक्स और पब्लिक में डेमो एक मेंबर फंक्शन है जिसमें इंट एन पास हुआ है और उस ए को हमने एक्स में स्टोर कर लिया है। ना यहाँ पर हम एक पब्लिक में फ्रेंड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्ले। लिखेंगे फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले और डेमो, जो कि आपका क्लास नेम है। देखिए यहाँ पे क्लास नेम को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं और उसके डेफिनेशन में हम ऑब्जेक्ट बना के उसे एक्सेस करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा void display demo is the class name space d1 और d1 जो ऑब्जेक्ट बना डॉट एक्स, ये बना मेरा ऑब्जेक्ट और डॉट एक्स इज द डेटा और यहाँ पर मेरा क्लास बंद हो गया। अब लिखेंगे void main demo space d25 जिसमें 5 डाले हैं, d2 यहाँ ऑब्जेक्ट बना है और डिस्प्ले में फिर d2 को हम पास कर रहे हैं और ये हमारा डिस्प्ले कर रहा है, ये डिस्प्ले में आ गया, ये इसमें हमारा आ गया, तो ये डिस्प्ले करेगा 5। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, क्लास सैंपल। सैंपल इज द नेम ऑफ क्लास जिसमें दो प्राइवेट मेंबर हैं, एक है ए दूसरा है बी, दोनों का डेटा टाइप है इंट। पब्लिक के अंदर एक मेथड लिखा गया है void setVal जिसमें A में 25 है और B में 40 है। उसके बाद हम एक फ्रेंड फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फ्रेंड फ्लोट, mean is the name of the friend function, sample is the class और S is the object। यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि यहाँ जो हम फ्रेंड फंक्शन लिखे हैं ये इसका डिफाइन हम लोग करेंगे सिर्फ जहां पर हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन जहां लिखा जा रहा है वहां पर आप फ्रेंड नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्लोट, मीन, सैंपल, एस और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उस दोनों डेटा को आप एक्सेस करेंगे। रिटर्न एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी डिवाइडेड बाय 2.0, ये आपका दोनों का एवरेज निकालने का है। फिर लिखेंगे void main
सैंपल x, यहाँ पर x नाम का ऑब्जेक्ट बना है और डिस्प्ले करेंगे सी आउट मीन, मीन में उस x को ऑब्जेक्ट को हम डालेंगे और फिर ये यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, सेम ये चीज आपका डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन। सो फ्रेंड फंक्शन में नन मेंबर फंक्शन है जो कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। इस लाइन को याद रखिएगा। A friend function is a non-member function of class that has been granted access to all private member of that class। और इसको भी याद रखिएगा। The major difference between member function and friend function is that member function is accessed through the object। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जितना प्राइवेट में देखे होंगे या पब्लिक में फंक्शन डिफाइन करते हैं, मेन में आके उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। while friend function is required objects to be passed as a parameter। और इसमें एज अ पैरामीटर हम क्लास नेम लिख के स्पेस दे के ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं और डॉट के थ्रू उस डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। सो दिस में हम फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस करते हैं। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ C++। So that's all from today's lecture. Thank you. Bye bye.